Welcome to the sixth video on As You Like It by William Shakespeare. In the sixth video, we shall see Act 1, Scene 3, Part B. विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित नाटक एज यू लाइक इट के छठे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्ट 1 सीन 3 का भाग बी देखेंगे। रोजालिंड इज अघास्ट ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर ओन banishment. Now, in the previous video, we had seen that Duke Frederick comes and declares that within the next 10 days, Rosalind is supposed to leave the palace and move out of it, and she is not supposed to be seen in the next 20 miles range of the palace, or else she will be killed for it. अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ड्यूक फ्रेडरिक गुस्से में आते हैं और रोजालिंड से कहते हैं कि तुम इस महल से 10 दिन के अंदर निकल जाओ, और यदि तुम यहां पर देखी गई या इस महल के 20 मील के दायरे में देखी गई तो उसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। Rosalind is aghast on hearing the news of her own banishment. Now, when Rosalind hears about it, she is quite bewildered. She is unable to understand what's gone wrong because she hasn't really done anything to displease Duke Frederick. So, she is unable to understand what is she being punished for. यहां हम देखते हैं कि रोजालिंड को यह समझ ही नहीं आ रहा कि उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके लिए उसको ये सजा दी जा रही है कि महल छोड़ करके जाना है। 20 मील के डिस्टेंस में यदि देखी गई तो मृत्यु दंड मिल जाएगा। She protests that she is no traitor to Frederick. Now Rosalind tells Duke Frederick that I have not been a traitor. I have not done anything against you or your dukedom or against your royalty, whatever. I have not done anything to oppose you. So why are you punishing me for that? Rosalind अपने चाचा ड्यूक फ्रेडरिक से ये कहती है कि मैंने तो कोई ऐसी गलती भी नहीं की, मैंने आपसे द्रोह भी नहीं किया, तो मुझे ये सजा क्यों दी जा रही है? Celia too begs her father to relent, but he is adamant. Now, on the other hand, Duke Frederick's own daughter Celia, who is very close to Rosalind and who loves her dearly, she begs her father not to take such a stand because Rosalind hasn't done anything. So she asks her father, she pleads, she begs to him that kindly withdraw your words. Rosalind hasn't done anything to offend you. Celia भी अपने पिता को समझाती है कि रोजालिंड ने आपको नाखुश करने के लिए कुछ किया ही नहीं है, तो आप उसको क्यों सजा देते हैं? आप अपने इस फैसले को वापस ले लीजिए। He repeats his threat once more, then leaves them. Now, in spite of the request by Rosalind and Celia, Duke Frederick does not agree, and he repeats his statement and leaves the stage. Now, Shakespeare here has put in the right amount of dramatic effect. यहां पर शेक्सपियर ने नाटकीयता को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है और उन्होंने ये दिखाया है कि ड्यूक फ्रेडरिक गुस्से में है, रोजालिंड उससे रिक्वेस्ट करती है कि मैंने गलती नहीं की है, सीलिया जो कि बेटी है फ्रेडरिक की वो भी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ड्यूक फ्रेडरिक अपनी बात को दोहराता है और वहां से चला जाता है। तो इस तरह के डायलॉग्स में नाटकीयता बहुत अच्छी आती है, इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। Celia loves Rosalind from the core of her heart. She is determined that the two girls will not be separated. She makes a plan. Now what happens? Celia is deeply in love with her sister, Rosalind. Now she says that, see, we two cannot be separated.
So for that I have a plan in my mind. सीलिया अपनी बहन से बहुत प्यार करती है. वो उससे कहती है कि हम दोनों को अलग करना किसी के बस की बात नहीं है. मैं तुम्हें एक योजना बताती हूं. She proposes to go with Rosalind to join Rosalind's deposed father in the forest of Arden. She says that, see, what we are going to do is that we both will go to the forest of Arden. I will accompany you when you move out of the palace. Now, this proposal of Celia adds the dramatic effect to the movement. यहां पर सीलिया बहुत नाटकीय ढंग से अपनी बहन से कहती है कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हमें अलग करना किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जंगल में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चलूंगी. दिस गिव्स रोजालिंड अ लॉट ऑफ सोलेस. नाउ ऑन लिसनिंग टू दिस, रोजालिंड इज क्वाइट कन्विंस्ड. इसको सुनकर रोजालिंड को बहुत तसल्ली होती है, उसको दिलासा बनती है, हौसला बनता है कि मेरी बहन मेरा साथ नहीं छोड़ रही है, वो भी मेरे साथ जंगल चलने के लिए तैयार है. बट वेरी सून दे बोथ रियलाइज दैट दे आर फियरफुल ऑफ द डेंजर्स ऑफ द जर्नी. नाउ ऑन अ सिस्टरली नोट दे हैव डिसाइडेड टू मूव अलोंग टुगेदर टुवर्ड्स द फॉरेस्ट. But the problem is that moving towards the forest in itself is quite dangerous. So they realize that they are really afraid of moving towards the jungle even when they both are together. यहां पर दोनों ने ये तो फैसला कर लिया कि वो दोनों चलेंगी साथ, लेकिन उन्हें ये भी महसूस होता है कि हम दोनों भी साथ हैं तो भी जंगल की तरफ जाना थोड़ा सा डरावना है, तो इसके लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा. टू ओवरकम दिस डेंजर दे डिसाइड टू डिस्गाइज देमसेल्व्स. इन दिस मैनर दे विल कंसील देयर ट्रू आइडेंटिटी. नाउ दे डिसाइड, सी, इफ वी गो आउट एज गर्ल्स देन पीपल विल थिंक वी आर गर्ल्स, वी आर वीक एंड दे माइट हार्म अस, दे माइट मोलेस्ट अस, दे माइट इन सम वे अटैक अस. सो लेट अस डिस्गाइज आवरसेल्व्स. वो आपस में ये तय करती हैं कि यदि किसी ने देख लिया कि हम लड़कियां हैं और हम अकेली बाहर निकली हैं तो लोग हमें किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम अकेली लड़कियों की तरह नहीं जाएंगे, हम भेष बदल करके जाएंगे. इन दिस मैनर दे विल कंसील देयर ट्रू आइडेंटिटी. इट इज डिसाइडेड दैट रोजालिंड विल ड्रेस एज अ बॉय. नाउ व्हाट द प्लान दैट दे मेक is that being two females is difficult. So one of us is going to dress up as a boy, and Rosalind, because her personality is better, she is taller and has a better build, so she will become the boy. अब दोनों बहनें मिलकर एक फैसला करती हैं कि हमें लड़की समझ करके लोग कमजोर समझकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं, हम में से एक को लड़का बनना होगा. अब रोजालिंड की कद काठी अच्छी है, हाइट अच्छी है, थोड़ा सा डील डॉल अच्छा है, तो वो डिसाइड करते हैं कि रोजालिंड लड़का बन करके निकलेगी. हर नेम एज अ बॉय विल बी गैनीमीड. सीलिया विल ड्रेस एज अ यंग फार्म गर्ल. हर नेम विल बी एलाइना. नाउ दे डिसाइड दैट लेट अस ड्रेस अप एज अ बॉय एंड अ गर्ल. हम ऐसा करते हैं कि हम एक लड़का बन जाए और एक लड़की बन जाए, और दोनों ने अपने लिए एक अलग अलग नाम भी ढूंढ लिए. रोजालिंड जो लड़का बनेगी उसका नाम गैनीमीड होगा, और सीलिया जो लड़की बनेगी, फार्म गर्ल बनेगी, उसका नाम होगा एलाइना. दे ऑल्सो डिसाइड टू टॉक अबाउट इट टू टचस्टोन. along with this they decide that they will talk to Touchstone, because in the earlier videos we have seen that Touchstone is although he is a clown, but he is a very mature person and he thinks good about the girls in the palace. यहां हम देखते हैं कि टचस्टोन जो कि क्लाउन है, वो इन दोनों बेटियों के लिए बहुत सहृदय भाव रखता है
और वो इनके लिए चिंतित रहता है और वो परिपक्व आदमी है. They have great faith in the goodness of the clown Touchstone, and the girls also, Celia and Rosalind, they both have great faith in the goodness of the clown Touchstone. इन दोनों को भी Touchstone की भलमन साहत पर पूरा भरोसा है. Celia says she will convince Touchstone to join them on their journey to the forest. Now Celia says to her sister Rosalind that don't worry, I will make sure that Touchstone escorts us to the forest. Celia अपनी बहन को समझाती है कि तुम परेशान मत हो, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं टचस्टोन को मना लूंगी कि वो भी हमारे साथ जंगल चले, तो हम दोनों अकेले नहीं होंगे, हमारी रक्षा के लिए टचस्टोन भी साथ में होगा. This plan gives them security and courage. Now, when they have decided on this point that they are not going to move out alone, they are quite confident. So, the element of fear reduces. यहां जब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो अकेली नहीं जाएंगी, टचस्टोन को साथ लेकर के जाएंगी, तो इनका डर थोड़ा सा कम हो जाता है. Both the sisters are happy and excited. दोनों बहनें अब बहुत खुश हैं और उनके अंदर बड़ी उत्सुकता है कि चलो ठीक है, महल ही तो छोड़ करके जाना है, चले जाएंगे, लेकिन अब हम दोनों बहनें भी साथ हैं और हम अकेली नहीं जाएंगी, टचस्टोन को साथ लेकर के चलेंगे. Celia and Rosalind go off to pack their jewels and wealth to take with them on their flight. Now, since they have to fly away, they have to leave the palace. So, they decide to pack their jewels and wealth because they have to take these things with them. अब दोनों बहनें रोजालिंड और सीलिया ये तय करती हैं कि जो भी छोटे मोटे गहने हमारे पास हैं, जो भी छोटी मोटी धन दौलत संपत्ति जो कि नॉर्मली छोटी बच्चियों के पास होता है, बस वही हमारे पास है, हम अपना सामान अपने साथ लेकर के जाएंगे. They think they will need some wealth to support them financially. Because when you move out of the palace, you need something to survive on. जब आप महल से बाहर निकल करके जा रही हैं, तो आपको अपने आप को सस्टेन करने के लिए कोई चीज तो चाहिए, कोई धन दौलत संपत्ति, कुछ छोटा मोटा तो खर्चा निकालने के लिए सामान चाहिए ही. इसलिए वो अपनी छोटी मोटी चीजों को इकट्ठा करके बांध लेती हैं. Their jewels and other wealth will solve this purpose, and they think that whatever little we have, it will solve the purpose of supporting us. वो ये तय कर लेती हैं कि जो भी छोटी मोटी चीजें हम दोनों के पास मिला करके हैं, उससे कम से कम हम दोनों अपने आप को कुछ समय के लिए आर्थिक रूप से संबल दे लेंगे और उसके बाद हम आगे का सोच लेंगे. Their jewels and other wealth will solve this purpose. Their love for each other becomes stronger. Now, with this whole episode, with this whole turn of events, we find that the love of the sisters for each other increases. यहां हम देखते हैं कि पूरा प्लान बनाने के बाद और एक दूसरे का साथ पकड़ के चलना, एक दूसरे को अकेले नहीं छोड़ना, इससे इनके प्रेम में और भी प्रगाढ़ता आ जाती है. तो दोनों बहनें एक दूसरे का साथ पकड़ करके अपने मनोबल को काफी ऊंचा पाती हैं. They find they are quite confident when both of the sisters are together. Let us see the glossary of important words and phrases to understand Act 1, Scene 3, Part B. आइए अब कुछ शब्द और वाक्यांश देखते हैं जो एक्ट 1 सीन 3 पार्ट बी को समझने में सहायक हैं. अघास्ट, struck with terror, amazement or horror, shocked and upset, filled with horror and surprise when you see or hear something, भयचकित और विस्मित, भौचक्का हो जाना, जैसे कि सीलिया और रोजालिंड हो गई. ट्रेटर, a person who gives away or sells secret of his or her country.
or someone who is not loyal to particular beliefs of friends, one who betrays another's trust or is false to an obligation or duty, one who commits treason. ट्रेटर का मतलब होता है कपटी, छली, देशद्रोही, विश्वासघातक, विश्वासघाती, गद्दार या राजद्रोही, जो अपने देश के राज, अपने देश की जो छुपी हुई इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको बाहर निकाल दे, उसको कहते हैं ट्रेटर, देशद्रोही, राजद्रोही, गद्दार. Relent, to become less severe, harsh or strict, usually from reasons of humanity. To cease resistance, to give in, let up, slacken, to finally agree to something that you had refused. नरम पड़ जाना, अंत में वह मान लेना जो पहले अमान्य था. To become less determined, strong, etc. शिथिल पड़ जाना, जोर कम हो जाना. यहां पर रिलेंट हमने देखा कि सीलिया, she requests her father to relent. She requests her father Duke Frederick to relent. यहां पर हमने देखा कि सीलिया अपने पिता ड्यूक फ्रेडरिक से कहती है कि आप थोड़ा सा रिलेंट हो जाइए, आप थोड़ा सा कम हार्श होइए, यानी आप थोड़े से नरम पड़ जाइए, आप रोजालिंड को देश निकाला मत दीजिए. एडमेंट, अ पर्सन हु इज एडमेंट अबाउट समथिंग हैज फॉर्म्ड एन ओपिनियन और टेकन अ पोजिशन दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज द पर्सन इज डिटरमिन्ड to keep that opinion or position. A noun adamant comes from a Latin word meaning material of extreme hardness, diamond. अटल या हठी, जब बहुत कोई स्ट्रांग होता है, अपनी चीज पर अडिग होता है, उसको एडमेंट कहा जाता है. Core of her heart. Core of the heart means that from the bottom of my heart, like expressing a feeling for someone or something. अंतःस्थल से, अंतर्मन से, दिल की तह से, या बोलचाल में हम कहते हैं तहे दिल से. Deposed, to remove a ruler or leader from power, शासक या नेता को सत्ता से च्युत करना, अपदस्थ करना. Disguise, to remove a ruler or leader from power, शासक या नेता को सत्ता से च्युत करना, अपदस्थ करना. A thing that you wear to use to change your appearance so that nobody recognizes you. रूप बदलने के लिए धारण की गई वस्तु, छद्मवेश या स्वांग. Conceal, to hide something, somebody, to prevent something or somebody from being seen or discovered. किसी से कुछ छिपाना या गुप्त रखना. Convince, to succeed in making somebody believe something. किसी को विश्वास दिलाना या आश्वस्त करना. To persuade somebody to do something. किसी को कोई काम करने के लिए तैयार कर लेना, मना लेना या राजी करना. Wealth, wealth measures the value of all the assets of worth owned by a person, community, company or country. Wealth is determined
by taking the total market value of all physical and intangible assets owned, then subtracting all debts. Essentially, wealth is the accumulation of scarce resources. संपत्ति, दौलत, द्रव्य, धन, धन दौलत या धन संपत्ति. Financially, with respect to money, from a financial point of view, वित्तीय दृष्टि से, पैसे के परिप्रेक्ष्य में. Financially, when we talk about money matters, when we talk about those resources which help us in the form of currency. फाइनेंशियली का मतलब होता है जिसको हम वित्त के संदर्भ में देखते हैं, रुपये पैसे के संदर्भ में देखते हैं. पर्पस, द एम और इंटेंशन ऑफ समथिंग. किसी का प्रयोजन, उद्देश्य या आशय या इरादा. What is needed in a particular situation. स्थिति विशेष की अपेक्षाएं, आवश्यकताएं. Here we have seen Act 1, Scene 3, Part B in the 6th video. After this, the story will be continued in the 7th video. Kindly see all the videos in continuation. यहां हमने इस छठे वीडियो में एक्ट 1 सीन 3 पार्ट बी देखा है. इसके आगे की कहानी हम 7वें वीडियो में देखेंगे. कृपया सारे वीडियोस निरंतरता से देखें. धन्यवाद. थैंक यू.